નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના ક્લાસમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ, આ ચેપ્ટર આપણે ભણી રહ્યા છીએ. પાર્ટ નંબર 1 આપણે આગળના ક્લાસમાં ભણી ગયા છીએ. આજે પાર્ટ 2માં આપણે આ ચેપ્ટરને આગળ ચલાવીશું. સૌથી પહેલાં વાત કરી લઈએ કે પાર્ટ 1માં આપણે કઈ કઈ વાત કરી. તો અંતરિક્ષ યાત્રામાં આપણે એવું કહેવાય છે કે સૌથી પહેલાં મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી છે તેઓ કલ્પના ચાવલા છે. તેમના પછી સુનીતા વિલિયમ્સ અને પુરુષોમાં સૌથી પહેલાં અંતરિક્ષ યાત્રી જે આપણા ભારતના છે તે છે રાકેશ શર્મા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાલે ટૂંકમાં કલ્પના ચાવલા વિશે માહિતી મેળવી. ત્યાર પછી રાકેશ શર્મા છે એ આપણા પ્રથમ અંતરિક્ષ યાત્રી છે, તેમના વિશે પણ થોડી માહિતી મેળવી. અને ત્યાર પછી આપણે અત્યારના પહોંચ્યા છીએ સુનીતા વિલિયમ્સના જીવન વિશેની માહિતી, તેમનો જન્મ અને તેમનો ઉછેર કેવી રીતે થયો તે વસ્તુ આજે આપણે જાણીશું. ચાલો, તમે પણ તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લું રાખો. પેજ નંબર 17 પર આપણે પહોંચ્યા છીએ. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 की ओहियो अमेरिका में हुआ था. सुनीताનો જન્મ 19 સપ્ટેમ્બર 1965માં અમેરિકામાં ઓહિયો શહેરમાં થયો હતો. मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी. કેવા વાતાવરણમાં તેનો ઉછેર થયો હતો? તો કે મુક્ત વાતાવરણમાં કોઈ પણ પ્રકારના બંધનો વગર તેમનો ઉછેર થયો. તેના લીધે જ તે છે પોતે સાહસિક બની. सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું કહેવાય છે કે બાળક નાનું હોય અને રમત રમતું હોય ત્યારથી જે વડીલો હોય છે તેને અંદાજ આવી જાય છે કે આ બાળક મોટું થઈ અને શું કરી શકશે. બરાબર છે, કારણ કે એને જે વિષયમાં રુચિ છે એ વિષયની વસ્તુ સાથે તેને રમવું ગમે છે. તો સુનીતા છે તે પણ નાનપણથી જ સાહસિક રમતો રમતી હતી. કેવી કેવી? તો કે ઘોડે સવારી કરવી, ત્યાર પછી સ્નોબોર્ડિંગ છે, ધનુર્વિદ્યા તે જાણતી હતી. આવા બધા સાહસ ભરેલા ખેલો છે તે રમતી હતી. વહ મહેનતી થી, મહેનત કરવી તેને ખૂબ ગમતી હતી. ઘરવાલે ઉસે પ્યાર સે સુની કહેતે થે. પ્રેમથી તેનું નામ છે એ સુની રાખવામાં આવ્યું હતું. 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ માણસ મહાન બને છે તો તેના માટે તે સપનું જુએ છે. સપનું કઈ રીતે જુએ છે? તો કોઈને એ વસ્તુ કરતા જુએ છે ત્યારે તેને એમ થાય છે કે હું પણ આ વસ્તુ કરીશ. તો સુનીતાના જીવનમાં પણ એક આવી ઘટના બને છે. તે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ છે તેને ચાંદની ધરતી ઉપરથી નીચે ઉતરતા જુએ છે અને એ જ સમયે તેના મનમાં સંકલ્પ થાય છે કે હું પણ આવી રીતે કંઈક કરી બતાવીશ. બચપન કા સંકલ્પ ઉસને સાકાર કિયા. જ્યારે 6 વર્ષની નાની ઉંમરમાં તેણે એ સંકલ્પ કર્યો હતો. એ સંકલ્પ તેણે પોતાની સાહસ વૃત્તિથી પાર પાડ્યો, પૂરો કર્યો. उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई. यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया. તેણે ક્યાં ક્યાં ભણ્યું તે વાત કરેલી છે. ત્યાર પછી इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया. अनुस्नातक સુધીનું ભણતર છે તે તેણે પૂર્ણ કર્યું. इससे पहले
1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और सम की प्रवृत्तियां का महत्व था। आनाथी पहला ते 1987 में एक व्यावसायिक नेवल अकादमी है तेनी साथे जोड़ाई, त्यां छे मेहनतनु खूब ज महत्व हतुं। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद भी मिला। हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, त्यार पछी तेणे हेलिकॉप्टरનું शिक्षण पण मेळव्યું। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। हेलिकॉप्टरનું शिक्षण मेळव्या पछी ते ऑफिसर में हेड बने छे। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। हवे ते आटलू भण्या पछी, आटली नौकरी कर्या पछी ते पोते पायलट बने छे अने ज्यारे ते पायलट बने छे त्यारे तेने खुशी थाय छे के अंतरिक्षमां जवा माटेनुं आ पहेलुं पगथियुं छे। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने में सफल हुई। नासा छे ते आपणे गया लेक्चर में बात करेली के ते वैज्ञानिकों ने आ रीते तैयार करी, ट्रेनिंग आपी अने अंतरिक्ष में मोकले छे। तो ते पायलट बन्या पछी तैयारी करी अने नासा में जाय छे। 1998 में ते अंतरिक्ष यात्रीनो कार्यक्रम बीजी बार सिलेक्ट थाय छे। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। बीजा प्रयत्न में तेनु सिलेक्शन थाय छे। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दुनिया में वैज्ञानिकों घणा बधा छे, हजारों वैज्ञानिकों छे, पण अंतरिक्ष यात्री छे ए केटला छे तो के फक्त 100। सुनीता ने खास मित्र और सहअध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। आवो प्रश्न थाय के सुनीता विलियम्स तो विलियम्स लागेलू छे तो ते भारतीय केवी रीते होई शके? तो तेनी बात करेली छे के सुनीताना जे पिता छे ते गुजरातना मूळ हता, बराबर छे, मूळ गुजरातना हता, तेना लीधे तेनुं मूळ छे ए गुजरात कहेवाय अने ते पण आपणी भारतनी कहेवाय। पण विलियम्स कहेवाय छे एनुं कारण ए छे के तेणे पोतानी साथे भणता माइकल विलियम्स साथे मेरेज कर्या, लग्न कर्या, एटले ते सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल विलियम्स जे तेमना पति हता तेमणे पण तेना आ कार्यमां साथ आप्यो। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। सुनीता छे ते अंतरिक्ष परी बनी तेना माटे कोनो महत्वनो हाथ छे तो के कल्पना चावला, तेणे प्रेरणा पूरी पाड़ी छे। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सुकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। छेल्ला 8 वर्ष में पहला कल्पना चावला जाए छे अंतरिक्ष में अने पछी सुनीता विलियम्स जाए छे। कल्पना चावला ज्यारे आवे छे त्यारे दुर्घटना में तेनुं मृत्यु थाय छे, पण सुनीता छे ते हेमखेम पाछी आवे छे, तेनाथी बधाने राहत थाय छे। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। ते पोते पाछा फरे छे त्यारे तेणे वात करी हती के नासामां ज्यारे कल्पना चावला साथे जेणे काम कर्युं हतुं तेनो अनुभव खूब ज सरस हतो। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पुरोता था। बनेनी रुचि, बनेनी पसंदगी छे ते घणी बधी अलग हती, पण
ભારતીય હોવાના લીધે બંને એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना चावला અને સુનિતા વિલિયમ્સ આ બંનેને ભારતીય સંગીત સાથે ખૂબ જ લગાવ હતો। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता કહે છે કે મને કલ્પના પાસેથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित કર્યું એટલે તો કે તેનું નક્કી કરવામાં આવ્યું, પસંદ કરવામાં આવી। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। તેને છે 1998માં અંતરિક્ષમાં જવા માટેનું શિક્ષણ છે તેની શરૂઆત કરી। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, अंतरिक्ष में जवा पहला जे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाए छे तेने व्यवस्थित ट्रेनिंग आपवामां आवे छे। शा माटे? तो कि आपणे जे वातावरण में रहीए छीए, जे पृथ्वी पर रहीए छीए तेना करता अंतरिक्षनुं वातावरण छे ते खूब अलग होय छे। त्यां इम्युनिटीनी अहींया करતાં खूब वधारे जरूर पड़े छे, तो तेना माटे खास प्रकारनी एक ट्रेनिंग आपवामां आवे छे। सुनीता ए ट्रेनिंग में क्यारथी जोड़ाई? तो कि 1998 में ते ट्रेनिंग में जोड़ाई। हवे सुनीता ज कहे छे कि अंतरिक्ष में रहेवुं ते आसान नहीं, त्यां कई कई तकलीफों थाय छे ते पण आपणे बात करशे। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। खावाथी लई अने नहावा सुधी बधी ज वस्तु, दरेक प्रक्रिया छे ते अहींया मुश्केली भरेली छे। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ત્યાં છે ચાલવા ફરવામાં પણ તકલીફ પડે છે, ત્યાંથી પાછા ફરવામાં તકલીફ પડે છે અને હાડકાઓ છે તે નબળા પડી જાય છે। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। ત્યાં રહેવા માટે આપણો મગજ છે તે પણ સપોર્ટ આપવો જરૂરી છે। તો દિમાગને, મગજને તૈયાર કરવા માટે પણ, મેન્ટલી પ્રિપેર થવા માટે પણ ટાઈમ આપવો તે જરૂરી છે। તે સુનીતા આ પ્રશિક્ષણ પોતાના शिक्षण दरमियान तैयार थाय छे। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। कई कई वस्तु सीखे छे? तो कि वैज्ञानिकोना जे स्पीच होय, भाषण होय ते बधा सांभळे छे। त्यार पछी यान विशेनी माहिती मेळवे छे। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। ત્યાં છે એકલું જવાનું હોય છે એટલે અંતરિક્ષ યાત્રા દરમિયાન કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે, કઈ કઈ તકલીફો તેની સામે આવે છે, આ બધી વસ્તુની જાણકારી છે તે પહેલેથી મેળવે છે। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। सुनीता છે તે અંતરિક્ષમાં આવવાવાળા જે ખતરા છે, જે મુશ્કેલીઓ છે તેના માટે संपूर्ण रीते हवे तैयार थई जाए छे। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। पोते संपूर्ण रीते तैयार छे के नहीं ते चेक करवा माटे 9 दिवस सुधी ते पानी में पण रहे छे। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। आ शिक्षण तेने क्या सुधी मेळव्युं? तो कि 8 वर्ष सुधी आ शिक्षण है ते तेणे मेळव्युं। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में
चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। विद्यार्थी मित्रों, आ पेरेग्राफ में सुनीता है ते क्यारे अंतरिक्ष में गया, त्यार पछी त्यां रही अने कयो कयो रेकॉर्ड बनाव्यो ते बधी बात करे छे। सौथी पहला बात करे छे के ते 10 डिसेम्बर 2007 में कया यान में जाए छे, तो कि अटलांटिस अंतरिक्ष यान में ते अंतरिक्ष में जाए छे। 17 डिसेम्बरे ते अंतरिक्ष में पहुँचे छे। 10 डिसेम्बरे जाए छे अने 17 डिसेम्बर अंतरिक्ष में ते चहलकदमी करे छे। त्यां पृथ्वी थी 360 किलोमीटरनी दूरी 360 किलोमीटर ते दूर थाय छे। अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे, अंतरिक्ष स्टेशन एटले के जे यान हतुं तेनी गति केटली हती, तो के कलाकमां ते 27,744 किलोमीटर हतुं। तेनी गति 27,744 किलोमीटर 1 कलाके अंतर कापती हती। छतां पण ते लोको 10 तारीखे निकळे छे अने 17 तारीखे त्यां पहोंचे छे। एटले विचारो के केटलुं बधुं अंतर थाय। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। पृथ्वीना केटला चक्कर कापे छे, तो के 15.7 चक्कर कापे छे, तेनी फरते आटा मारे छे। अर्थात सुनीताए पृथ्वीना केटला चक्कर लगाव्या, तो कि 2,967 चक्कर तेणे लगाव्या। इस अभियान में सुनीता ने 29 અને 17 मिनिट आ अभियान में सुनीताए 29 कलाक અને 17 मिनिट स्पेस वॉक करके स्पेस में चाली अने रेकॉर्ड बनाव्यो। इससे पहले अप्रैल माह 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। आ रेकॉर्ड बनाव्या पहला ते एप्रिल महीना में 4 कलाक અને 24 मिनिट मैराथन जीती अने तेणे रेकॉर्ड बनाव्यो हतो। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। विद्यार्थी मित्रों, शैनॉन ल्यूसिक है तेनो रेकॉर्ड हतो कि 188 दिवस अने 4 कलाक तेनो रेकॉर्ड है ते सुनीता विलियम्स तोड़े छे। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। ते अंतरिक्ष में केटलो समय रहे छे, तो कि 6 महीना सुधी ते अंतरिक्ष में रहे छे अने तेनो अनुभव है ते कहता कहे छे कि त्यां व्यायाम करवो, कसरत करवी ते खूब ज जरूरी है, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शा माटे व्यायाम करवो जरूरी है, तो कि मांसपेशियों है ते त्यां नबળી पड़ी जाए छे अने हाडकाओ पण नबळा पड़ी जाए छे, तो व्यायाम करवो त्यां खूब जरूरी है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। त्या केटली तकलीफों हती, तो कि त्यां छे शरीरનું લચીલાપન એટલે જે સુંદર શરીર હોય છે
તે ઝડપથી તેની ચરબી ઓગળવા લાગે છે. ત્યાર પછી માંસપેશીઓ છે તે નબળી પડી જાય છે, હાડકાઓ નબળા પડી જાય છે. અને બીજી વાત એ હતી કે સૂવાનું ન હતું, સૂવાની વ્યવસ્થા ન હતી, એટલે ઊંઘ પૂરી થતી નથી અને ડિબ્બાબંધ ભોજન દરરોજ 6 મહિના સુધી ડબ્બામાં પેક કરેલું ભોજન છે તે જમવાનું હતું. ભારહીનતા, પોતાનો વજન છે તે ખૂબ ઓછો થાય છે. शरीर के लचीलेपन की तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डी तेज क्षति से समस्याएं थी. तो आटली समस्याओं છે તેમનો તેને सामनो करवो पड़े છે. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइक साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. सुनीता છે તે અંતરિક્ષમાં રહી અને શું કરે છે તો ઘણા બધા જે માણસોનું સાયન્સ છે, માણસો વિશેનું વિજ્ઞાન છે તેના વિશે શોધો કરે છે, ફિઝિકલ સાયન્સ વિશે શોધો કરે છે. ત્યાર પછી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કરે છે, શિક્ષા અને ટેકનોલોજી વિશે પણ માહિતી મેળવે છે. આ રીતે નવી નવી શોધો તે કરે છે. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाए. आ सिवाय तेणे अंतरिक्षમાં જઈ અને બ્લડમાં, આપણા લોહીમાં શું ફેરફાર થાય છે તેના સેમ્પલ પણ તેણે પહોંચાડ્યા. सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. सुनीता बात करे છે કે અંતરિક્ષમાં ગયા પછી સૌથી મહત્ત્વની વાત મને એ લાગે છે કે આપણી પૃથ્વી છે એ કેટલી શાનદાર છે, કેટલી સરસ છે. दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए. ત્યાં ગયા પછી એક વિચાર શક્તિ છે, એક એવો વિચાર આવે છે કે આપણે આપણા સુંદર ગ્રહને આવતી પેઢી માટે કેવી રીતે બચાવી શકીએ. अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं. अंतरिक्ष છે તે મળીને કામ કરવા માટેની સુંદર જગ્યા છે. ત્યાં ગયા પછી એવું થાય છે કે આપણે पृथ्वी पर शा माटे सीमाओं दौड़िए छिए. नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता. જ્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં વાત કરે છે ત્યારે સુનીતા કહે છે કે અહીંયાથી વિશ્વ છે તે આખું એક દેખાય છે, सीमाओंथी अलग थयेलू देखातू नहीं. यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है. यह दृश्य बहुत मनोहर था. ते कहे छे कि अहींयाथी सीमाओं वहेंचायेलो आपणो ग्रह नहीं पण पूरेपूरो आखो ग्रह देखाय छे. सरस मजानी पृथ्वी देखाय छे, तेमां हरियाળી देखाय छे, पहाड़ो छे, समुद्र छे, आ बधी वस्तु देखाय छे अने खूब ज सुंदर दृश्य छे. 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. 19 जून 2007 में अंतरिक्षमांथी ते यान छे ते सुनीतानी साथे बीजा 7 वैज्ञानिकोने लई, अंतरिक्ष यात्रीओने लई अने रवाना थाय छे. पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. आखू विश्व छे ते सुनीता हेमखेम पाछी आवी जाय तेना माटे राह जोतुं हतुं. 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. केटलो रिकॉर्ड बनाव्यो तो कि 194 दिवस 18 कलाक 58 मिनिटनो रिकॉर्ड बनावी सुनीता 22 जून 2007 अहींया पहोंची.
सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। सुनीताનો આ રેકોર્ડ જોઈ અને ભારતીય અને ગુજરાતી લોકો છે તે ગૌરવ અનુભવે છે અને આ પાઠમાં લેખિકા પણ કહેવા માંગે છે કે જો સુનીતાની જેમ આપણી બહેનો દીકરીઓને આગળ વધારવી હોય, મહિલાઓને આગળ વધારવી હોય તો તેને સાહસિક બનાવવી તે ખૂબ જ જરૂરી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ પરથી એ શીખ મળે છે કે હંમેશા સાહસ કરવું, સાહસ કરતાં ન ડરવું અને જીવનમાં સંકલ્પ એવડો મોટો રાખવો કે જેને પૂર્ણ કરવા માટે આપણે દિવસ અને રાત મહેનત કરીએ, બરાબર છે। અને એ આપણો સંકલ્પ પૂરો કર્યા પછી પણ આજની પેઢી અને આવતી ઘણી બધી પેઢીઓને એવી માહિતી મળી રહે, તેને આપણે ઉપયોગી થઈ શકીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે। ફરી પાછા મળીએ આવતા લેક્ચરમાં નવા એકમ સાથે। ત્યાં સુધી બધાને નમસ્કાર।